Hello guys, welcome to my YouTube channel Maths Server. In our last video, we were talking about and learning a very important topic, that is exponent and powers. That is starting from the class in many boards like CBSE and ICSE from 6th or 7th class. इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारे रूल्स हमने सीखे थे कि कैसे एक्सपोनेंट्स के रूल हेल्प करते हैं हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो आज हम कुछ एग्जांपल्स को लेंगे जिससे हम समझ पाएँ कि कैसे हम रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आई हैव अ बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिशर फॉर क्लास 7 फ्रॉम विच आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस to explain you guys. So without wasting time, let's get started. So here I have taken two questions. The questions are evaluate. Evaluate, the very first is minus 5 having a power 2 and minus 2 having power 5. So what to do? What we have to do here, क्या करेंगे? Minus 5 having power 2 means minus 5 अपने आप से 2 times multiply होगा, and again we had a multiply sign here, so we will write multiply. Now minus 2 having power 5, it means minus 2 will multiply by itself 5 times. अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर आप कहीं पे मल्टीप्लाई साइन नहीं भी लगाते बीच में तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। अब सिंपली हमें इसे इवेल्युएट कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो इवेल्युएट हो जाएगा। तो 5 5 सा 25, 5 5 are 25, and minus into minus will become plus, means positive 25. And here we have to multiply 2 2s are 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32, and how many times minus sign we have? 1 2 3 4 5, means 5 negative sign in the multiplication. It means 5 negative sign. I had told you in my previous videos, if negative sign in the multiplication is odd number of times, अगर multiply या divide करते समय जो negative integer है वो odd number of times है, तो result में हमेशा negative sign आएगा। तो result में हमेशा ही negative sign आएगा। तो हमें क्या मिलेगा? -32। अब हमारे पास दो ही नंबर है, सिर्फ 25 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। 25 2 ज़ा 50, 5 कैरी, 25 3 ज़ा 75, 75 plus 5 80, 800, and this is a positive number, this is negative number, so plus into minus minus, so this is our answer, minus 800. Okay, so this is how we have to solve. So now let's move on to our second question. So now you can see here we have 4 raised to the power 3, so we can write 4 3 times. Now we have 5 raised to the power 2, means 5 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, and minus 1 having power 301. अब आप एक चीज देखिए, क्या हम -1 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में 301 बार लिख सकते हैं? यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर लिखना भी पड़े तो 1 को अगर 301 बार भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही आंसर आएगा, तो 1 का आंसर तो 1 ही आएगा। आप सोचिए, अगर मैं 1 को 301 बार 1 into 1 लिखता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो 1 ही आएगा। अब लेकिन बात यह है कि इस पे साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है। अब आपको चेक करना है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, या मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया है कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो ऑड होती है। अब आप देखिए, ये पावर है 301, 301, इट्स अ ऑड नंबर। व्हेनेवर वी आर हैविंग अ पावर as a odd number of a negative integer, always the answer will be negative. हमेशा आंसर जो है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सो यहाँ हमारे पास आ गया -1। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 5 5 जा 25,
and minus 1 as it is. Multiply these two. 25 4 the 100, 10 carry, 25 6 the 150, 150 and 10, 160. So our answer is 1660 into minus 1. So 1600 into 1, 1600, and this is a positive number, negative number, plus minus minus. So this is our actual answer, minus 1600. So this is how we have to solve the questions where we have to evaluate the powers. Okay, got it? So let us move on to our next questions. Now the questions we are going to do where we have to apply the laws of exponent that we had learned in our last video. If you have not seen our last video, I am putting the I button here, click on it. So first watch that video to know about all the laws, तब उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन है 42a cube b square upon 216 a square and b. सो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हमें ये जो 42 और 216 है इन्हें हमें पावर्स की फॉर्म में कर लेना है. तो पावर्स की फॉर्म में करने के लिए हमने क्या सीखा था, फर्स्ट वी हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर. सो 42 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में हम करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा हमें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब इसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 7 ज़ा एंड डन. तो हम 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into 7. ओके, अब 216 को अगर ऐसे ही करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ओके, और उसके बाद 0 आ जाएगा और 1 8 ज़ा, और 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 3 ज़ा 9 ज़ा 3 ज़ा and finally 3 ज़ा. So what we can write, 216 2 multiply 2 multiply 2 3 into 3 into 3. So this is okay. So here we can write 216, the factor of 216 we can, here you can see 2 कितनी बार है, 3 बार, तो इसे हम 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, और 3 भी कितनी बार है, 3 बार, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब. अब इसी चीज को हम इसे और इसे यहाँ इस क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे. तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 into 3 into 7 into a cube into b square. ये हमने 42 की जगह लिख दिया इसके फैक्टर, और 216 की जगह कौन से फैक्टर आएंगे, 2 क्यूब 3 क्यूब a square b. ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. अब क्या होगा, हमने लास्ट वीडियो में देखा है हमारे कि रूल के अकॉर्डिंग जब भी बेस सेम होगा और डिवाइड में है तो पावर विल सब्ट्रैक्ट. तो क्या होगा, जैसे देखिए ये जो 3 है, 2 बेस सेम है, यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं पावर में, सबकी पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है. तो जब बेस सेम है 2 तो पावर विल सब्ट्रैक्ट, या तो ये ऊपर जाके 1 में सब्ट्रैक्ट होगी या ये 1 नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. क्योंकि नीचे पावर बड़ी है तो हम 2 को नीचे ले आते हैं. तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं 2 स्टेप में करूँ इस क्वेश्चन को, 7 को ऊपर ही रखते हैं हम, तो नीचे 2 क्यूब पहले से है, 3 क्यूब पहले से है, a स्क्वायर पहले से है और b पहले से है. और ये जब 2 की पावर 1 नीचे आएगा तो ये नीचे आकर हमने सीखा है कि वो नेगेटिव बन जाएगा, और ऊपर 3 की पावर 1 भी जब नीचे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. अब आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 2 बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स विल ऐड टुगेदर. ऐसे ही 3 के साथ भी है, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टेप में इस a स्क्वायर और b को ऊपर लेके जाएंगे तो डायरेक्टली
ऊपर जाके माइनस कर देते हैं क्योंकि होना तो माइनस ही है। a और a बेस सेम थे तो 2 पावर यहाँ के माइनस हो गई। सेम ऐसे ही ये b की पावर 1 थी तो ऊपर आके 2 में से 1 माइनस हो गया। ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या था 3 प्लस माइनस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 1 3 माइनस 1 2 रेज़ टू द पावर 2 आ गया, और यहाँ पर ये भी आपका 3 रेज़ टू द पावर 2 हो गया। अल्टीमेटली क्या आंसर आया यहाँ पे 3 minus 2 is 1, 2 minus 1 is 1 upon 2 raised to the power 2 is 4, 3 raised to the power 2 is 9. Answer is 3ab upon 9 for the 36. Now this is our final answer. I hope you have understood all this. If you have any doubt regarding all this content, message me, okay? I will explain you. Hello. Now the next question. This is, now here you can see we have 8 upon 6 raised to the power 6 and divided by 8 upon 9 having power 2 and whole is having power 2. And we had learnt in our last videos where we had learnt about laws of exponents. When any number having a power of its power, so in that case powers will get multiplied. दोनों ही पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 8 अपॉन 9 की जो पावर है 2 वो उसकी भी बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास में यहाँ पे उसका, इस स्टेप का आंसर क्या आ गया आपके पास 2 to the 4। अब हमारे पास लॉ है कि अगर ये होल की पावर है तो इंडिविजुअल की पावर भी यही होगी। हम अलग अलग को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब जैसा कि हम फ्रैक्शन में सॉल्व करते समय करते हैं, ये वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये फ्रैक्शन का इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल। Same when bases are same, now same 8 is same, bases are same and dividing each other, so power will subtract, power subtract हो जाएगी। ये ऊपर आएगा तो 8 की पावर 4 6 में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ जो 9 है 9 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 3 into 3 की पावर 4, नीचे जो 6 की पावर 6 है इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 into 2 की पावर 6। ओके, इसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 8 6 minus 4 will be 2, 6 minus 4 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसे भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 अपॉन यहाँ भी अलग अलग कर देंगे 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6। ओके, अब इस 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की फॉर्म में। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 मतलब 2 का क्यूब, ये 8 हो गया और 8 की पावर थी 2, ये तो 2 तो वैसे ही आ गई। अब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6, यहाँ क्या बन जाएगा ये 2 की पावर 6 ये, क्योंकि ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर की भी पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो गए तो 2 की पावर 6 आ गया। यहाँ पर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और नीचे क्या है 6 एंड 2 की पावर 6। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 2 और 2 सेम है और डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो 6 पावर यहाँ माइनस हो जाएंगी 6 minus 6, और यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 4 + 4 8, और ये जो 6 है यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। तो 2 6 minus 6 is 0, 3 8 minus 6 is 2, 2 की पावर 0 मीन्स 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा, और 3 raised to power 2 means 3 into 3 will become 9, here 9 ones are 9, so this is your actual answer. This is how we have to solve our questions. Okay, पहले हमें पावर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 हो गया, फिर इसको इंडिविजुअल पावर में लिख लिया, रेसिप्रोकल किया, बेस सेम थे तो ये पावर यहाँ के माइनस हो गई। ठीक है, 2, उसके बाद इन सबको ब्रेक कर लिया हमने,
ब्रेक करने के बाद 8 को ब्रेक किया, 2⁻3 उसकी भी पावर 2 है, ये फिर से मल्टीप्लाई होके 6 आ गया, ठीक है, और सो ऑन हमने वैसे ही अप्लाई कर दिया। तो आइए 2 क्वेश्चन और करके देखते हैं। आइए एक नए टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आइए देखें कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए 2n into 2⁻2 is equal to 2⁻6 having power n। सो इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें पता है कि पावर्स ऐड हो जाएंगी, 9 + 2 पावर्स 9 और 2 ऐड हो गई, और इस साइड क्या है, पावर्स मल्टीप्लाई है, क्योंकि पावर की भी पावर है, तो 6 × n हो जाएगा, जो कि हम 6n लिख सकते हैं। ओके, अब आप देखिए दोनों साइड बेस सेम है, दोनों साइड बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल टू तो तभी आएगा जब 2 और 2 जो बेस है उनकी पावर भी सेम ही होगी, पावर सेम होगी। इसका मतलब ये जो 9 + 2 11 है, ये 2 की पावर है यहाँ, और यहाँ पे 2 की पावर जो 6n है, ये दोनों इक्वल होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है कि इक्वल टू साइन है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो n यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे 6 और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो n को अगर मैं रखूंगा यहाँ, तो 6 जब n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 6 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए n की वैल्यू जो है x/11/6 आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 12 की पावर n। सो यहाँ जो 12 की पावर n है, पहले 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं। आप देखिए दूसरी साइड में जो वैल्यूज है 4 और 3 बेसिस है, तो 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 और 3 के बेस में। ओके, या फिर उसको वैसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। ये जो आप देखिए यहाँ पे पावर सेम है, हमने लॉस में पढ़ा है कि जब भी पावर सेम होगी बेस विल मल्टीप्लाई, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सेम आ जाएगी। ओके, तो बेस यहाँ पर ये सेम ही है, 4 × 3 = 12 n। देखिए पहले जैसी कंडीशन बन गई, जैसे यहाँ पर 2 के केस में था, ऐसे यहाँ पे 12 के केस में आ गया। बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों साइड में 12 है, तो जब बेस 12 है तो वैल्यूज तो तभी सेम आएंगी इनकी जब इनकी पावर्स भी सेम होगी। इसका मतलब पावर्स n = 8 के बराबर आ जाए। तो ऐसे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट में हमने इवेल्युएट किया, जहाँ पे पावर दी हुई थी उनको एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करके एक जनरल नंबर लिखा। उसके बाद पावर्स वाले क्वेश्चन को हमने एक्सपोनेंट ऑफ लॉस, ठीक, लॉस की हेल्प से सॉल्व किया। उसके बाद उन्हीं लॉस की हेल्प से हमने एक वेरिएबल की पावर फाइंड आउट करी। तो यहाँ से आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। सो एक के बाद एक अपनी बुक में से इन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में से, एग्जांपल्स में से सॉल्व करिए, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए उस क्वेश्चन का पिक लेकर सेंड करिए कमेंट्स में, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, लाइक करिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम ऐसे वीडियोज़ और बनाते रहें, और शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि हम इसी तरह आपकी सेवा में लगे रहें। टिल देन, थैंक यू।